Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good morning, student. Now we have started learning about the important carbon compound. In that we have covered about the important carbon compound, carbon dioxide. We have seen its usage, its physical properties, its chemical reactions, and its uses. Okay, now let's see about the next type of the carbon compound, which is a methane. Okay, the molecular formula of methane is CH4. See, the molecular formula of the methane is CH4 and its molecular mass is 16. Now see, one carbon. There is a one carbon in the molecule of the methane, and one carbon have the atomic mass 12, and one hydrogen. One hydrogen the atomic mass 1, and here in this molecule there are the 4 hydrogen, so that's why the mass of the 4 hydrogen will be 4. So 12 plus 4 is equals to 16, so that's why its molecular mass is 16. Occurrence means yes, in which form and where it is found in the nature is called occurrence. Methane occur in natural gas to the extent of the 87%. Methane occurs in natural gas to the extent of the 87%. Now we know that the natural gases are methane, ethane, propane, butane. So in the natural gas the percentage of it is 87%. Decomposition of the organic matter in absence of the air produces methane. So when organic matter, the dead bodies of plant, stale food, skin, hairs, and all the things which are the plant origin and which are the animal origin are the organic in nature. So when these organic matter decompose in absence of air, the methane gas is produced. Methane is present in the biogas. जो बायोगैस है, okay, the what is the biogas? The gas evolved when there is decomposition of the organic materials which are the plant origin and which are the animal origin is called biogas. Methane is found in the coal mines. Methane is also found in the coal mines. जो coal mines होते हैं जहाँ से कोयला निकाला जाता है, ऐसे कोल के माइन से, कोल के खदानों से भी मीथेन निकलता है. Methane is found at the surface of the marshy places, which is why it is called as the marsh gas. Methane is also found. Okay, कहाँ कहाँ ये मिलता है? ये मार्शी लैंड होता है जहाँ पे दलदल वाला एरिया होता है, दलदली एरिया होता है, वहाँ भी ये गैस क्या होता है, मिलता है. इसीलिए इसका नाम ही क्या रखा गया है, मार्श गैस. इसका दूसरा नाम मीथेन का क्या है, मार्श गैस. ऑन हीटिंग a mixture of hydrogen and carbon monoxide gas at 300 degrees Celsius in presence of nickel, methane gas is formed. On heating mixture of the hydrogen and carbon monoxide gases at 300 degree in the presence of nickel, methane gas formed. ओके, तो ये लेबोरेटरी मेथड है मीथेन गैस के फॉर्मेशन का. उसके लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को 300 डिग्री सेल्सियस और पे हीट करना पड़ता है, और ये प्रेजेंस ऑफ निकल, और निकल कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है. तो दैट टाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मीथेन गैस. द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द नेचुरल गैस gives the methane in the pure form. When we do the distillation of natural gas, that time pure form of methane is obtained. Now physical properties of the methane. Methane की physical properties. Melting point of methane is minus 182.5 degrees Celsius. The melting point is minus 182.5 degrees Celsius. The melting point is similar to the freezing point. Means the methane gas freezes at minus 182.5 degrees Celsius. Boiling point of methane. Boiling point of methane. The methane boils at minus 161.5 degrees Celsius. इस टेम्परेचर पे वो क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है. इट इज कलरलेस गैस. और जो ये गैस है, दिस इज द कलरलेस गैस. इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है.
द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मीथेन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर। अब अगर क्या है, लिक्विड मीथेन अगर हम लोग लेते हैं तो लिक्विड मीथेन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से लेस होती है, कम होती है। द मीथेन इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। अब स्पेरेंगली का मतलब क्या है, ये बहुत कम अमाउंट में। तो नाउ मीथेन इज स्पेरेंगली सॉल्युबल इन वाटर मीन्स वाटर में ये बहुत ही लेस एक्सटेंट तक ही ये मिस होती, ये डिजॉल्व होती है। इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल्स। और जो दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि गैसोलीन है, ईथर है, क्या क्या है, गैसोलीन, ईथर एंड अल्कोहल, उसमें ये ह्यूज क्वांटिटी में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। मीथेन इज इन गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। मीथेन इज इन गैसियस स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। जो मीथेन है वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में मिलता है। अब ये गैसियस रूम टेम्परेचर इज मीन्स अबाउट द, यस, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, जी ये नॉर्मल टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे जो है ये किस फॉर्म में मिलता है, गैस के फॉर्म में। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीथेन, मीथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज। मीथेन इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इट बर्न्स बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन टू गिव द ब्लूइश फ्लूम इन दिस reaction 213 kilocalorie per mole of the heat is given out. Methane burns completely. Okay, now yes, methane is highly inflammable, बहुत ही ज़्यादा inflammable है। It catches immediately fire. It burns with the oxygen to give the bluish flame. और जब ये ऑक्सीजन के साथ में बर्न होता है तो ब्लू फ्लेम हम लोगों को देता है, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देता है। द केमिकल रिएक्शन CH4 प्लस ऑक्सीजन, बिकॉज इन बर्निंग रिएक्शन ऑक्सीजन इज द रिएक्टेंट, तो CH4 इज मीथेन, CH4 प्लस O2 gives the carbon dioxide and plus water molecule and heat energy is released. Okay, now yes, नेक्स्ट वन क्लोरीनेशन। फर्स्ट रिएक्शन क्या था इसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में, बर्निंग रिएक्शन। सेकेंड वन इज द क्लोरीनेशन। मीथेन एंड क्लोरीन गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर एट द टेम्परेचर ऑफ द 250 डिग्री सेल्सियस to 400 डिग्री सेल्सियस in presence of the ultraviolet light and form the mainly methyl chloride or chloromethane and hydrogen chloride. This reaction is called as the chlorination of the methane. Okay, now yes, methane and chlorine both react with each other at temperature of 250 degrees Celsius to 400 degrees Celsius in presence of the UV light, and there is a formation of the chloromethane and hydrochloric acid. The chemical reaction CH4 plus Cl2 in presence of UV light form the CH3Cl plus HCl. Now uses of the methane, methane के uses. Now first we use methane in the form of natural gas is used in industries such as fabric mills, paper mills, food processing industry, petrol purification etc. जो मीथेन है, ओके, मीथेन इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस, मीथेन का इस्तेमाल नेचुरल गैस के फॉर्म में फैब्रिक मिल्स इंडस्ट्रीज, पेपर मिल्स इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और पेट्रोल प्यूरिफिकेशन के लिए होता है, ऐसे इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। being the smallest hydrocarbon, the proportion of the CO2 released in the combustion of the methane is small, and therefore it is used as a domestic fuel. Now this is the smallest hydrocarbon, the organic compound which is only made up of the carbon and hydrogen called as the hydrocarbon. So this is the smallest hydrocarbon, ये सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन है, एंड इट इज़ देयर फॉर यूज एज द डोमेस्टिक फ्यूल, तो ये घर में फ्यूल के फॉर्म में इस्तेमाल होता है।
क्योंकि ये क्या होता है, बर्न होता है। मीथेन इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज इथेनॉल, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिटिलीन। अब इस मीथेन का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में दूसरे कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इथेनॉल के फॉर्मेशन के लिए, मिथाइल क्लोराइड फॉर्मेशन के लिए, मिथिलीन क्लोराइड एंड एसिलीन के प्रोडक्शन के लिए। मीथेन गैस was discovered by the Italian scientist Alessandro Volta between 1776 and 1778 while he was studying the gases found in the Marsi land। जब ये अलेक्जेंड्रो उल्टा वो जब 1776 से 1778 के बीच में मार्सी गैसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, दैट टाइम दिस मार्सी गैस मीथेन वॉज डिस्कवर्ड। उस टाइम इस गैस का क्या हो गया, डिस्कवरी हुई। बायोगैस प्लांट, नेक्स्ट पार्ट इज द बायोगैस प्लांट। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट। ये बायोगैस प्लांट है। दिस इज द टैंक, दिस इज द लार्ज टैंक कॉल्ड एज द डाइजेस्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। नाउ सी दिस टैंक, दिस स्मॉल टैंक is called as the inlet. It is called as the inlet, and in this inlet chamber the slurry of the cattle dungs and the dead straw of the agriculture products and the stale foods are फेड इसमें क्या करते हैं, उसको फेड करते हैं या फीड करते हैं, मतलब उसके अंदर डालते हैं। एंड द वाटर इज स्प्रिंकल्ड, और वाटर को भी क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। नाउ सी द दिस सेक्शन डंग एंड द वाटर मिक्सचर। तो व्हाट हैपेंस हियर, डिकम्पोजिशन ऑफ दैट ऑर्गेनिक मटेरियल स्टार्ट एंड सम बैक्टीरिया आर कल्चर्ड इन दिस। इसके अंदर क्या करते हैं, कल्चर्ड करते हैं। तो व्हाट हैपेंस दैट बैक्टीरिया डिकम्पोजेस द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड ड्यूरिंग द yes decomposition the gas CH4 releases that get collected in these dome shaped structures, and through this tube through these tubes it is supplied to the houses for cooking purpose. And after decomposition the organic material become yes after the decomposition the organic material become light in weight. They are collected in the आउटलेट चेम्बर। यहाँ पे जो आउटलेट चेम्बर है इसमें वो क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है। एंड दिस मटेरियल इज वेरी गुड मैन्योर। ये क्या होता है, एक अच्छा सा मैन्योर होता है, जिसका इस्तेमाल जो है ये सब फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फॉर्म में खेतों में किया जाता है। फार्मिंग के टाइम में उसको सॉइल के अंदर मिक्स किया जाता है। तो इन दिस वे द ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज, वी गेट द वी गेट द नेचुरल गैस मीथेन एज वेल एज वी ऑब्टेन द मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर भी हम लोगों को क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है, मिल जाता है। यस, बायोगैस प्लांट, animal dung, dry leaves, wet garbage get decomposed by inorganic microbes in the biogas plant। जो एनिमल डंग है, मतलब जो गोबर होता है, ड्राई लीव्स होते हैं जो सूखी पत्तियां होती हैं, वेट गार्बेज जो क्या है, गीले कचरे होते हैं, ये सब के सब इनऑर्गेनिक माइक्रोब्स की हेल्प से बायोगैस प्लांट में डिकम्पोज होते हैं। दिस प्रोड्यूसेस मीथेन गैस आल्सो कॉल्ड बायोगैस। और ये जो है मीथेन गैस भी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोगैस। बायोगैस इज अ वेरी चीप फ्यूल ऑप्शन विच मीट द डिमांड फॉर कुकिंग गैस। अब ये जो है सबसे सस्ता चीप वे है, सस्ता मेथड है कुकिंग फ्यूल ऑब्टेन करने का, खाना पकाने के जो फ्यूल है उसको ऑब्टेन करने का, एज कंपेयर टू द एलपीजी गैस। उसके जो एलपीजी गैस के कंपेयर में ये चीप होता है, सस्ता है।
इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में भी होता है। बायोगैस कंटेन अबाउट 55% टू द 60% मीथेन एंड रेस्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस होता है, बायोगैस में 55 to 60% मीथेन होता है और बचा हुआ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। Biogas is a fuel which is convenient to use, and in addition to this, very good manure is also produced as a side product of the process। अब ये जो बायोगैस फ्यूल है वो बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर सकते हैं हम लोग। अलॉन्ग विद दैट, इसके साथ साथ ही, यस इट इज़ वेरी गुड मैन्योर, ए वेरी गुड मैन्योर इज ऑल्सो प्रोड्यूस। इस प्रोसेस में एक बहुत ही अच्छे क्या है, ये ऑर्गेनिक मैन्योर का भी फॉर्मेशन होता है एज ए साइड प्रोडक्ट, एज अ साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। नाउ बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, बायोगैस प्रोडक्शन प्रोसेस, अभी हम लोगों ने देखा कि बायोगैस बायोगैस प्लांट से कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बायोगैस का प्रोडक्शन का प्रोसेस। नाउ फर्स्ट वन, प्रोडक्शन ऑफ द एसिड्स। तो बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस इज एन एनारोबिक प्रोसेस, टेक प्लेस इन टू द टू स्टेजेस। जो एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन is absence is called as the anaerobic process. Now first part of it, because this is completing in the two stages, first one, production of the acids। पहला जो स्टेज है वो क्या करना है, ये एसिड का फॉर्मेशन। द माइक्रोब्स एक्ट ऑन द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स। मीथेन गैस प्रोडक्शन, मीथेन गैस प्रोडक्शन, the methogenic bacteria act on the organic acid to produce the methane। Now methogenic bacteria, ये they convert the acid to produce the methane gas। तो देखो अभी कैसे बायोगैस से बायोगैस कैसे ऑब्टेन किया जाता है, या मीथेन कैसे हम लोग को ऑब्टेन होता है। तो इन फर्स्ट स्टेप, द बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स biodegradable complex are acted by the bacteria, and then that bacteria convert that is the constituent of that organic complex और बायोडिग्रेडेबल कॉम्प्लेक्स इनटू द ऑर्गेनिक एसिड, उसको ऑर्गेनिक एसिड में ब्रेक करता है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल में ब्रेक करते हैं या ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स फॉर्म हुआ, एसिडिक एसिड, तो मीथेजोनिक बैक्टीरिया एक्ट ऑन दिस एसिड एंड कन्वर्ट इनटू द मीथेन गैस। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बना, एसिड, एसिडिक एसिड बना। फिर दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, जो मीथेजोनिक बैक्टीरिया है, मीथोजेनिक बैक्टीरिया ने क्या किया, इसके ऊपर एक्शंस किया, इस एसिड के ऊपर एक्शंस किया, एंड ये ब्रेक होकर मीथेन और क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। Okay student, now yes, unmute yourself, and if you have any doubt to ask to me, this lesson is completed now। Yes student, tell me, is anybody having any doubts? Yes student, do you have any doubt? Not having any doubts? Okay, now I will start the next lesson.